Hey everybody, in this video we are going to talk about Parliament of India because it's very important for our examination. So Parliament is basically supreme legislative body of the Republic. Republic means like India. India is a republic, a republican country. Definition of Parliament or introduction. Parliament is a supreme legislative body of India. Okay, supreme legislative body of India. It represents the people and makes laws for the whole country. So it represents people and make laws for the whole country. It consists of the president and the two houses like Lok Sabha, House of the People, and Rajya Sabha, Council of State. Core concepts. Core concepts. It's a bicameral legislature, means having two houses. Representative body means elected by the people of state. That's why it is a representative body. Sovereignty. Sovereignty derives its authority from the constitution. So sovereignty derives its authority. So parliament has authority, and that authority derived from the constitution. Function like lawmaking, financial control, executive control, and constitutional functions. So these kind of functions performed by parliament. Works on principle. Works on principles of democracy, federalism, and secularism. Wait. Yeah. Works on principles of democracy, federalism, and secularism, or we can say DFS. So these are the three important principles on which parliament works. Now we have to study. Now we have to study about classification or structure. So there's a part, the Lok Sabha or House of the People, and the Rajya Sabha, Council of State. Composition. So parliament basically composed of elected members plus nominated like Anglo-Indians. But now Anglo-Indians, nominated Anglo-Indians, not applicable. So it's just only about elected members. It's just only about elected members. Okay. Elected members. Next, tenure. Wait. Whereas in Rajya Sabha, elected members by state or UTs plus nominated members by president. So there's a nominated Anglo-Indian members, but now not applicable, but there's a nominated members plus president, it is applicable. Whereas elected members by state or UTs, and here's elected members only. There's no state or UTs, blah blah blah. Tenure. Tenure for Lok Sabha 5 years unless dissolved earlier. So it can be dissolved earlier, but Rajya Sabha has 6 year tenure, and one third retire every 2 years. So one third members retire every 2 years. Method of elections. In Lok Sabha there is a direct election by people, whereas in Rajya Sabha it is indirect election by elected members of state assemblies. Maximum strength Lok Sabha for 552 was 530 plus from state and 20 plus UTs, and there's two Anglo-Indian now not available. Okay, now not available. So it is not available. Just now there's just only 550. In the Rajya Sabha 250, 238 from state and 12 from UT. So now it is a line Anglo-Indian nomination provisions ended by the 104th. It is 104th Constitutional Amendment Act 2020. Next we have प्रोसेस और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लाइक कैसे लॉ बनता है. सिंपल सी बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है, इंट्रोड्यूस करता है बिल को. फिर फर्स्ट रीडिंग इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें सेकेंड रीडिंग डिस्कशन होता है. तो पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, कि लाइक बिल इज दिस अबाउट दिस बिल ये है. फिर फर्स्ट रीडिंग में उस बिल को पढ़ा जाएगा. सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन होगा. थर्ड में लाइक कमेटी स्टेजेस होते हैं. कमेटी स्टेजेस में कुछ पॉइंट्स होता है, उसमें कंसिडर होता है हाउस में. फिर थर्ड रीडिंग होता है जिसमें पास होता है लॉ. फिर ट्रांसमिशन टू अदर हाउस, फिर अदर हाउस में जाता है. उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट होता है. फिर वो जब असेंट मिल जाता है तब वो लॉ बन जाता है. मनी बिल के केस में क्या होता है, ये कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा. ओनली लगे ना, ओनली लोकसभा. अगर मनी बिल है ना, इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली इन लोकसभा, ठीक है. राज्यसभा कैन डिले फॉर 14 days ओनली. और इसी लोकसभा बिल में जब यहाँ पे कंसिडरेशन होता है, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन टू अदर हाउस होता है, इस सेक्शन में ट्रांसमिशन इन अदर हाउस, इस सेक्शन में जब राज्यसभा के पास ये जब मनी बिल जाता है, एक मिनट, राज्यसभा के पास जब मनी बिल जाता है, मनी बिल, ठीक है, तो ये जस्ट 14 डेज के लिए डिले कर सकता है. 14 डेज के लिए डिले कर सकता है, ओनली डिले कर सकता है 14 डेज के लिए. दैट्स इट. Okay. Now next important facts. फर्स्ट सेशन होता पार्लियामेंट का 13 दिसंबर 1952. क्यों यहाँ पे? क्योंकि 1952 में, इसके पहले 1950 में हमारा कंट्री क्या और रिपब्लिक बना, लाइक रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया. उसके पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, ठीक है. वहीं पे उसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट सेशन होता है हमारा, एंड दैट वुड बी फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है.
ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही पार्लियामेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लाइक 79 to 122 के बीच में आ जाता है ये पार्लियामेंट का डिस्कशन। 79 से 122 122 स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कोरम क्या होता है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, इसे कोरम बोलते हैं। किसी भी केस में अगर 1/10 हो जाए टोटल मेंबर का उसे कोरम बोलते हैं। सैलरी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट नॉट बाय एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री मेंबर्स की देख रहे हो कॉन्सिडेंस क्या है, खुद की सैलरी हम खुद डिफाइन कर रहे हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए, ठीक है, लाइक कितना पैसा मिलना चाहिए। तो पार्लियामेंट की जो सैलरी होती है डिटरमाइन होती है बाय द पार्लियामेंट नॉट बाय एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हेडक्वार्टर्स क्या है, संसद भवन न्यू दिल्ली, ये है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़। RTI एक्ट 2005 जो पास होता है बाय पार्लियामेंट, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो केसेस और लाइक लॉज पास होता है बाय पार्लियामेंट। GST 101st अमेंडमेंट, मेजर टैक्स रिफॉर्म भी पार्लियामेंट लाता है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 जिसमें 33% रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट असेंबली की बात की जाती है। जैसे नो राज्यसभा का मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओनली लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो यहाँ पे 33% वुमेन रिजर्वेशन बात करी जाती है। रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था, रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था, डिजिटल इंडिया बिल था, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है advantages and significance of parliament. It ensures democratic governance. So democracy बना रहे ये इंश्योर करता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट करता है बिल ऑफ पीपल एंड स्टेट, विल ऑफ पीपल एंड स्टेट, लाइक लोग और राज्य के जो विल है उनकी जो इच्छाएं हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। लॉ मेकिंग बॉडी है क्योंकि ये मेक करता है एंड अमेंड करता है लॉज को, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल करता है, कोई टैक्स विदाउट अप्रूवल, इसके अप्रूवल के बिना कोई टैक्स लागू नहीं हो सकता, इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल, लाइक एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल होल्ड्स करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, लेकिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लाइक टुवर्ड्स पार्लियामेंट। डिबेट करता है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्कस, डिबेट करता है, प्रमोट करता है, एक मिनट, डिबेट्स करता है, फिर प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्कशंस को प्रमोट करता है, ठीक है। सेफगार्ड करता है फेडरल स्ट्रक्चर सेफगार्ड करता है। ना चैलेंजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है, चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या है एक्चुअली। फ्रीक्वेंट डिसरप्शन था जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है। क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में देखा जाए तो हर 10 में से 9 मेंबर्स, 10 में से 9, एक मिनट, 9 out of 10 मेंबर्स होते हैं वो क्रिमिनली होते हैं। मनी पावर एंड इन्फ्लुएंस बहुत हाई है यहाँ पे। डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ डिबेट्स, क्योंकि जब सब अनपढ़ जाएंगे तो वहाँ पे तो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स और डेफिनेटली डिक्लाइन होगी। पेंडेंसी ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्स, ये इंपॉर्टेंट बिल्स को हटाकर अनइम्पोर्टेंट बिल्स पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ओवरलैपिंग पावर समटाइम्स लीड टू डेडलॉक, कभी कभी पावर जब ओवरलैप करती है तो वहाँ पे डेडलॉक हो जाता है, लाइक कोई डिसीजन नहीं निकल पाता। गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कभी कभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव से पॉलिसी लेते हैं, लाइक ई पार्लियामेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें पेपरलेस डिजिटल फंक्शनिंग, संसद टीवी जो 24/7 टेलीकास्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड PRS लाइक पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विसेज, रिसर्च सपोर्ट फॉर MPs। न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में इनॉग्रेटेड ऑन 28 मई 2023 एंड कमेटी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में DRSC, PSC, एस्टिमेट्स कमेटी, ये सभी कमेटीज है जो कमेटी सिस्टर्स, लाइक SIS होना चाहिए यहाँ पे, सिस्टर्स स्ट्रेंथन करती हैं, ठीक है, लाइक DRSC के, PSC पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, एक्सेट्रा जो भी कमेटीज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट UPSC के लिए वैल्यू एडिशन क्या है, यहाँ पे UPSC के लिए वैल्यू एडिशन है। कीवर्ड में बाइकैमरल, सॉवरेंटी, लेजिस्लेशन, अकाउंटेबिलिटी, कोरम। कमेटीज में DRSC, PSC, एस्टिमेट कमेटी, एथिक्स कमेटी, एक्सेट्रा। रिपोर्ट में PRS रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या, आर्टिकल 79 to 125 122। इंपॉर्टेंट जजमेंट में क्या, खीतो होलोमन वर्सेस जाचिल्लू 1992 एंटी डिफेक्शन लॉ अपहेल्ड। इंटरनेशनल कंपैरिजन में UK पार्लियामेंट, US कांग्रेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। नेक्स्ट अपने पास माइंड मैप है, जो हमने पढ़ा उसे हम माइंड मैप की तरफ समझना चाहेंगे। आई विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोसेस, की एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंस और कंपोजिशन, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बाइकैमरल है, प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है। कंपोजिशन में लोकसभा क्या है 552 मैक्सिमम है, जिसमें से 2 जो एंग्लो इंडियन थे अब नॉमिनेट नहीं होते। डायरेक्टली इलेक्टेड टर्म जो था 5 ईयर का। राज्यसभा में क्या है 250 मैक्स है, जिसमें 238
प्लस 12 का आई मीन यहाँ पे है 238 फ्रॉम स्टेट एंड 12 फ्रॉम यूटीज। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय स्टेट 130 रिटायर होता है एवरी 2 ईयर्स पे। यहाँ पे टर्म होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से पहले डिसॉल्व हो सकते हैं अर्लियर, तो खत्म हो जाएगा उनकी टेन्योरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है, या टर्म खत्म हो जाएगा। फंक्शन में लेजिस्लेटिव फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है। प्रोसेस में बिल इंट्रोड्यूस करना, डिस्कस करना, पास करना, प्रेसिडेंट का एसेस करना, एंड देन जाके वो बिल लॉ बन जाता है। दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। सिग्निफिकेंस में डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंट अपने पीपल एंड स्टेट को, विल को, लॉ मेकिंग सिग्निफिकेंस, चेक्स एंड बैलेंस करना, ये भी लाइक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है एंड एग्जीक्यूटिव से कंट्रोल करता है, ठीक है। की एस्पेक्ट में क्या है कि कोरम जो 1/10 होता है, लाइक 1/10 मेंबर्स। आर्टिकल 79 to 122 फर्स्ट सेशन 1952 में हेडक्वार्टर संसद भवन में। चेयरमैन राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर जो लोकसभा इलेक्टेड बाय एलएस। एक मिनट, क्या मतलब है? स्पीकर जो होता है लोकसभा का इलेक्टेड होता है बाय एलएस, मतलब मुझे नहीं पता क्या है मतलब एक्चुअली, ठीक है। जस्ट निमोनिक पिलर टू रिमेंबर फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पी से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, आई से लॉ मेक पिलर, आई से लॉ मेकिंग कैसे मतलब हो सकता है? यहाँ पे एल होना चाहिए ना, एक, ठीक है, मान लिया। पीपल आई से लॉ मेकिंग और एज ए लेजिस्लेशन, एज ए लेजिस्लेशन, ठीक है। ऐसे अकाउंटेबिलिटी एंड वेट एंड आर से रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है 12 क्विक रिवीजन बॉक्स, टॉप 10 फैक्ट्स, बाइकैमरल लेजिस्लेशन, आर्टिकल 79 120 फर्स्ट सेशन 30 दिसंबर 1952, लोकसभा 5 ईयर्स, राज्यसभा 6 ईयर्स, 130 बाइनियली, यानी कि बाइनैनियली, ठीक है, एनुअली नहीं, बाइनैनियली। कोरम 1/10 होता है, मैनुअली लोकसभा, चेयरमैन राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा इलेक्टेड बाय मेंबर्स। ये स्पीकर लोकसभा इलेक्टेड होता है बाय मेंबर्स। हेडक्वार्टर संसद न्यू दिल्ली। कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेशन, अकाउंटेबिलिटी, सोवरेंटी, क्या है ये? सोवरेंटी है ना, SOVER जी, मुझे सोवरेंटी स्पेलिंग नहीं है, SOVER, सोवरिन, RIGN, सोवरिन, हार्ट वे, SOVER, सोवरिन, RIGN, सोवरेंटी, आई गेस, सोवरेंटी, ठीक है, मे बी इट इज आर, ठीक है, SOVERIGNT, सोवरेंटी, या इट इज, मे बी, चेक कर लेना तुम। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड यूपीएससी पॉइंट्स में डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ बिल एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि रिमेंबर, पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, इट इज द वॉइस ऑफ द पीपल and the guardian of democracy. So this was the chapter and I hope you had understand all of the facts. जो पार्लियामेंट के लिए इम्पोर्टेंट था, जो एग्जाम्स में आ सकता है, बेसिक मैंने कवर कर दिया एंड एडवांस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।